Hello, welcome all of you who are watching my video in this YouTube channel series in which today we are going to study of a famous essay on saying please written by a modern essayist A.G. Gardner. Let us start critical appreciation on saying please. A.G. Gardner was an English journalist, editor, and author who lived from 1865 to 1946. He wrote essays under the alias Alpha of the Plough, which are highly regarded for their wit, wisdom, and social criticism. He was also the chairman of the National Anti-Sweating League, an advocacy group that campaigned for a minimum wage in industry. He started his career as reporter for the Chelmsford Chronicle and the Bournemouth Directory, and later became the editor of the Daily News, a leading liberal journal of his time. He resigned from the Daily News in 1919 over a disagreement with the owner George Cadbury, who was also the subject of one of his biographies. A.G. गार्डनर एक पत्रकार, संपादक और लेखक थे। अल्फा ऑफ द प्लो के उपनाम से निबंध लिखे जो अपनी बुद्धि, ज्ञान और सामाजिक आलोचना के लिए अत्यधिक जाने जाते हैं। वह नेशनल एंटी स्वेटिंग लीग के अध्यक्ष भी थे, जो एक वकालत समूह था जिसने उद्योग में न्यूनतम मजदूरी के लिए अभियान चलाया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत चैम्सफोर्ड बोलेंगे, चैम्सफोर्ड में क्या किया था, क्रॉनिकल और बॉर्नमाउथ डायरेक्टरी के रिपोर्टर के रूप में की, और बाद में अपने समय की एक प्रमुख उदार पत्रिका डेली न्यूज़ के संपादक बने। उन्होंने मालिक जॉर्ज कैडबरी के साथ मतभेद के कारण 1919 में डेली न्यूज़ से इस्तीफा दे दिया, जो उनकी एक जीवनी का विषय भी था। He wrote several books and of essays and sketches such as Prophets, Priests and Kings 1908, Pillars of Society 1913, Pebbles on the Shore 1916, Leaves in the Wind 1923, and Many Furrows 1924. He also wrote biographies of Sir William Harcourt, Lord Morley and Lord Rosebery के नाम से इन्होंने बायोग्राफीज भी लिखी। A.G. Gardner's On Saying Please is a powerful essay advocating for the importance of politeness and good manners in everyday interactions, highlighting how simple words like please and thank you can foster positive social relationship and prevent conflicts. A.G. Gardner का ऑन सेइंग प्लीज एक शक्तिशाली निबंध है जो रोज़मर्रा की बातचीत में विनम्रता और अच्छे शिष्टाचार के महत्व की वकालत करता हुआ दिखता है, जिसमें बताया गया है कि कैसे कृपया और थैंक यू यानी कि प्लीज और थैंक यू जैसे सरल शब्द सकारात्मक सामाजिक संबंधों को बढ़ावा दे सकते हैं और संघर्षों को रोक सकते हैं। The author also points out that good manners are not only a matter of words but also of tone, expression and gesture. He says that a polite word can be made impolite by a sneer of a frown, and vice versa. He also says that good manners are not only a duty but also a pleasure because they make people feel good and create a friendly atmosphere. Here is a more detailed critical appreciation. लेखक यह भी बताते हैं कि अच्छे शिष्टाचार जैसे केवल शब्दों का मामला नहीं है, बल्कि स्वर, अभिव्यक्ति और हाव भाव का भी मामला है। अगर हम अच्छा बोलेंगे, शिष्टाचारी वाले शब्द बोलेंगे, आपस में एक दूसरे से बातचीत करते समय शिष्टाचार में रहेंगे, प्लीज़ थैंक यू का वर्ड अगर यूज करते हैं, तो यह हमारे स्वर, अभिव्यक्ति और हाव भाव के मैनर सुधार का तरीका होता है। उनका कहना है कि एक विनम्र शब्द को एक व्यंग या भौं चढ़ा करके अशिष्ट बनाया जा सकता है। इसके विपरीत अगर इन शब्दों का यूज करके हम लोग शिष्टाचार की भावना को दिखा सकते हैं। वह यह भी कहते हैं कि अच्छे शिष्टाचार न केवल एक कर्तव्य है बल्कि एक खुशी भी है, क्योंकि वे लोगों को अच्छा महसूस कराते हैं और एक दोस्ताना माहौल बनाते हैं। यहाँ पर दिया जा रहा है डिटेल्ड क्रिटिकल एप्रिसिएशन। फर्स्ट हेडिंग रहेगी द पावर ऑफ पोलाइटनेस। Gardner emphasizes that politeness is not merely a formality but a social necessity, crucial for maintaining a civil and harmonious society. He argues that using polite language
even with those in lower position, demonstrates respect and acknowledges their worth. This essay explores the issue of politeness and as an extremely important and indispensable feature of civil society. Gardner argues that politeness is that which keeps the social life of a civilized man well oiled and friction free. He illustrates this point by narrating an incident of a lift attendant who threw a passenger out of his lift for not saying please. गार्डनर इस बात पर जोर देते हैं एम्फेसाइज करते हैं कि विनम्रता केवल एक औपचारिक नहीं है बल्कि एक सामाजिक आवश्यकता भी है जो एक सभ्य और सामंजस्यपूर्ण समाज को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भी होती है। उनका तर्क है कि निचले पदों पर बैठे हुए लोगों के साथ भी विनम्र भाषा का उपयोग करना सम्मान प्रदर्शित करना होता है और उनके महत्व को स्वीकार करना होता है। यह निबंध नागरिक समाज की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अपरिहार्य विशेषता के रूप में विनम्रता के मुद्दे की पड़ताल करता है। गार्डनर का तर्क है कि विनम्रता वह है जो सभ्य व्यक्ति के सामाजिक जीवन को सुचारू और घर्षण मुक्त बनाती है। इसी तरह से एक लिफ्ट अटेंडेंट की घटना का वर्णन करते हुए इस बिंदु को स्पष्ट करता है कि जिसने एक यात्री को अपनी लिफ्ट से बाहर फेंक दिया। When asking to be taken to the top floor, Gardner then discusses how the law cannot enforce good manners, but only protect people from physical harm or material loss. He also suggests that the best way to deal with the rude people is to be excessively polite towards them, as this will make them feel ashamed or embarrassed. Gardner concludes by saying that good manners are a sign of a good temper, which is essential for a happy and humorous life. जिसने एक यात्री को अपनी लिफ्ट से बाहर फेंक दिया क्योंकि उसने शीर्ष में ऊपर मंजिल पर जाने के लिए कृपया शब्द नहीं बोला था। गार्डनर फिर चर्चा करते हैं कि ऐसे कानून अच्छे शिष्टाचार को लागू नहीं कर सकते हैं, लेकिन केवल उनके लोगों को शारीरिक नुकसान या भौतिक हानि से बचाया जा सकता है। वह यह भी सुझाव देते हैं कि असभ्य लोगों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनके प्रति अत्यंत विनम्र होना होता है, क्योंकि इससे उन्हें शर्म और शर्मिंदगी और ज़्यादा महसूस होगी। गार्डनर का यह कथन है कि निष्कर्ष निकालते भी हैं कि अच्छे शिष्टाचार अच्छे स्वभाव का संकेत देते हैं जो एक खुशहाल और सामंजस्य जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं। ह्यूमरस लाइफ, सामंजस्य जीवन और एक खुशहाल जीवन जीने के लिए, और एसेंशियल फॉर हैप्पी और हारमोनियस दोनों वर्ड है, इसका मीन्स है खुशहाल और सामंजस्यपूर्ण हो जाएगा। हैप्पी एंड ह्यूमरस लाइफ, खुशहाल और सामंजस्यपूर्ण जीवन। नेक्स्ट हेडिंग, प्लीज एज अ ब्रिज। The essay highlights how the word please can act as a bridge between people, making interactions smoother and fostering cooperation. It suggests that a simple please can diffuse tense situations and create a more positive atmosphere. Please as a bridge निबंध इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे प्लीज जो शब्द होता है लोगों के लिए एक पुल के रूप में कार्य कर सकता है, जिससे बातचीत आसान हो जाती है, सहयोग का बढ़ावा मिलता है और सुझाव देता है कि एक साधारण प्लीज तनावपूर्ण स्थितियों को शांत कर सकता है। जब एक तनावपूर्ण स्थितियों को प्लीज शब्द शांत कर सकता है तो हम लोग क्यों ना यूज करें उस शब्द को और अधिक सकारात्मक माहौल बना सकते हैं। द रिपल इफेक्ट ऑफ रूडनेस मीन्स हो जाएगा अशिष्टता का लहर जैसा प्रभाव, रिपल जैसा प्रभाव। गार्डनर आल्सो एक्सप्लोर्स the negative consequences of bad manners, arguing that rudeness can be contagious and create a hostile environment. He suggests that bad manners can lead to conflict and damage relationships. While politeness can promote understanding and empathy, this writer says that war has badly affected our manner. War was made people uncivil, boorish, and rude. He advises to restore good manners to make life a happy one. One should teach moral lesson to those who are guilty of bad manners. The ripple effect of rudeness में गार्डनर बुरे शिष्टाचार के नकारात्मक परिणामों की खोज करते हुए दिखते हैं। यह तर्क देते हैं कि अशिष्टता संक्रामक हो सकती है और शत्रुतापूर्ण वातावरण बना सकती है। वह सुझाव देते हैं कि बुरे शिष्टाचार संघर्ष और रिश्तों के नुकसान पहुंचा सकते हैं। वह विनम्र समझ और सहानुभूति को बढ़ावा देते हैं।
लेखक कहते हैं कि युद्ध ने हमारे व्यवहार को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। युद्ध ने लोगों को असभ्य और भी ज़्यादा असभ्य बार्बरियस बना दिया है। वह जीवन को खुशहाल बनाने के लिए अच्छे शिष्टाचार को बहाल करने के लिए सलाह देते हैं कि अच्छा शिष्टाचार सभी लोगों को अपनाना चाहिए। बुरे व्यवहार के दोषी लोगों को नैतिक शिक्षा भी देनी चाहिए। नेक्स्ट, बियॉन्ड द सरफेस मीन्स सतह से परे। The essay goes beyond superficial politeness, suggesting that true civility comes from an understanding of the importance of treating others with respect. Gardner believes that politeness should be a natural extension of our character, not just a superficial act. निबंध है सतही विनम्रता से परे होता है। यह सुझाव देता है कि सच्ची शिष्टता दूसरों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करने के लिए महत्व देती है। गार्डनर का मानना है कि विनम्रता हमारे चरित्र का स्वाभाविक विस्तार होना चाहिए, न कि केवल वह सतही कार्य के लिए होना चाहिए। अ कॉल ऑफ एक्शन, कार्यवाही पर आह्वान या बुलावा। अल्टीमेटली ऑन सेइंग प्लीज इज अ कॉल टू एक्शन, urging readers to be more mindful of their language and interactions. Gardner believed that if we all strive to be more polite, the world would be a better place. ऑन सेइंग प्लीज एक कार्रवाई का आह्वान दिखाया है जो पाठकों से उनकी भाषा और बातचीत के प्रति अधिक सचेत रहने के लिए आग्रह करता है। गार्डनर का मानना है कि अगर हम सभी अधिक विनम्र होने का प्रयास करेंगे तो दुनिया और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट, रेटिंग गार्डनर्स स्टाइल। Gardner's writing style is engaging and accessible, using vivid examples and anecdotes to illustrate his points. He is able to make a seemingly simple topic, politeness, seem profound and importance. गार्डनर की शैली जो स्टाइल है वो आकर्षक और सुलभ है, जिसमें वह अपने बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए ज्वलंत उदाहरणों और उपाख्यानों का उपयोग करते हैं। वह एक साधारण से विषय के रूप में विनम्रता को गहरा और महत्वपूर्ण बनाने में सक्षम भी है। रिलेवेंस टुडे, इवन इन द मॉडर्न वर्ल्ड द मैसेज ऑफ ऑन सेइंग प्लीज रिमेन्स रिलेवेंट इन अ वर्ल्ड ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट एंड डिवीजन। द essay serves as a reminder of the power of kindness and respect. आधुनिक दुनिया में ऑन सेइंग प्लीज का संदेश प्रासंगिक बना हुआ है। अक्सर संघर्ष और विभाजन की विशेषता वाली दुनिया में निबंध और दयालुता और सम्मान की शक्ति को याद दिलाता है। The author concludes by saying that the best way to deal with the rude people is to be excessively polite to them, because this will either shame them or annoy them more than violence. He says that this is the sweetest revenge one can take on them. He also says that good manners are contagious, and if we are polite to others, they will be polite to us. He urges us to cultivate good manners as a habit and a virtue. लेखक यह निष्कर्ष निकालता है कि असभ्य लोगों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका उनके साथ अत्यधिक विनम्र होना होता है, क्योंकि यह या तो उन्हें शर्मिंदा कर देगा या हिंसा से ज़्यादा उन्हें परेशान करेगा, हिंसा से भी ज़्यादा। वह कहते हैं कि उनसे लिया जाने वाला सबसे मीठा बदला यही है। वह यह भी कहते हैं कि अच्छे शिष्टाचार संक्रामक होते हैं, और अगर हम दूसरों के साथ विनम्र हैं और विनम्रता का व्यवहार करते हैं तो वो हमारे साथ भी विनम्रता का व्यवहार करेंगे। वह हमें एक आदत और एक गुण के रूप में अच्छे शिष्टाचार विकसित करने का आग्रह भी करते हैं।